Hello, welcome back once again in microcontroller and application subject. In the last lecture, we have completed the topic of memory organization of 8051 microcontroller, and before that we have completed the detailed architecture of 8051 microcontroller. Now, what is our today's learning objective, today's lecture learning objective? In our today's lecture learning objective is now we have to compare derivatives of 8051. Means what are the different derivatives of 8051, we have to compare between them. The different derivatives of 8051, as you can see, 8951, 8952, 8031, 8751, means different other types of versions of microcontroller related to 8051. So we have to see in detail also what are the features of these microcontrollers is there, and in the end we are going to compare between these derivatives of 8051 microcontroller. So you must be able to give the answer of the question, compare 8031, 8051 and 8751 after the completion of this lecture. What are the contents of today's lecture? First we are going to give the introduction, understand the introduction, then 8951 microcontroller, features of 8951 microcontroller, 8952 microcontroller, 8031 microcontroller, 8751 microcontroller, and in the end, comparison of 8051 family members. So all these microcontrollers, after understanding the features, in the end we are going to do the comparison of 8051 family members. So these all are the microcontrollers is of 8051 family members only. The different derivatives of 8051 microcontroller, different versions you can say. So we are going to understand first, and in the end we are going to compare between them. So this is the concept map. What is the concept map? In the concept map, these all are the derivatives of 8051 microcontroller. So the derivatives of 8051 microcontroller are such as 8951, 8952, 8031, 8751. So these all are the family related with 8051 microcontrollers. Some changes is there with respect to each and every type. So we are going to first understand what is the difference in each type, and in the end going to do the comparison of all these type. So first we are going to understand the introduction. So 8051 is a popular 8-bit microcontroller, as you very well know कि जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो किसकी कर रहे हैं? 8051 माइक्रो कंट्रोलर की कर रहे हैं. तो 8051 जो है वो पॉपुलर 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर है. 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर का मतलब क्या होता है? 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर का मतलब क्या होता है कि उसकी जो कैपेबिलिटी है प्रोसेस करने की डेटा, वो कितनी है? 8 बिट की है. तो एट अ टाइम आप कुछ भी डेटा जो प्रोसेस करोगे वो कितने बिट का कर पाओगे? 8 बिट का कर पाओगे. और ये किसके ऊपर, ये किसकी वजह से होता है? It is depending upon which? It is depending upon the data bus size. So in 8051 microcontroller, as the data bus size is of 8 bit, so at a time we can handle a data of 8 bit only. तो इसके लिए माइक्रोकंट्रोलर 8051 को क्या कहते हैं? 8 बिट माइक्रोकंट्रोलर बोलते हैं, क्योंकि उसकी डेटा हैंडल करने की जो कैपेसिटी है एट अ टाइम वो कितने बिट की है? 8 बिट की है. एक टाइम पे 8 बिट से ज़्यादा डेटा वो हैंडल नहीं कर सकता है. और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेटा बस की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है. तो डेटा बस की साइज़ 8 बिट है, इस हिसाब से वो 8 बिट का ही डेटा हैंडल करता है एक टाइम पे, और इसलिए 8051 को कहते हैं 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर. तो हम लोग ये सारे जितने भी है ना 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर की स्टडी कर रहे हैं, ये जो फैमिली है, ये जो मैं नाम दिखाया था आपको, जो डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स, वो सारे 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है जो 8051 से रिलेटेड है. तो वो सब चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे. सो मैनी 8051 आर्किटेक्चर आर प्रोड्यूस बाय, तो कौन कौन से मैन्युफैक्चरर जो है वो बनाते हैं? तो 8051 आर्किटेक्चर जो, ये 8051 टाइप का जो आर्किटेक्चर है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय ट्रिसेंट, इंटेल, एक्मेल, फिलिप्स, इन्फिनियन जिसको सीमेंस भी बोलते हैं, ISSI एंड मैक्सकॉप विद एडवांस फीचर्स और मेमोरी कैपेसिटी. तो दिस ऑल आर द मैन्युफैक्चरर्स नेम, ये सारे मैन्युफैक्चरर्स के नाम है जो ये 8051 आर्किटेक्चर
को प्रोड्यूस करते हैं, टाइप की चिप को बनाते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरर्स के नाम है। अब वो क्या क्या है डिफरेंट डिफरेंट, वो अभी हम लोग देखेंगे। दिस 8-bit आर्किटेक्चर हैज़ डिफरेंट सेगमेंट्स, और ये जो 8-bit का जो आर्किटेक्चर है उसके अलग अलग सेगमेंट्स है। तो अलग अलग सेगमेंट्स क्या क्या है, जैसे एक 8951 है, 8952 है, 8751 है, 8031 है। तो ये सब अलग अलग सेगमेंट्स है, 8951, 8952, 8751, 8031। अब सब में कुछ ना कुछ तो अलग माइनर अलग है, तभी तो उसका कुछ डिफरेंट सेगमेंट करके दिया हुआ है। तो वो कुछ अलग क्या है, कौन से बेसिस पे है, वो जरा हम लोग अभी देखेंगे, आगे अंडरस्टैंड करेंगे। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ 8951 माइक्रो कंट्रोलर। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 8951 माइक्रो कंट्रोलर। ये 8951 माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, हम लोग को नॉर्मली 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में भी मालूम है क्या क्या होता है उसके अंदर। अब इसमें दिया हुआ है उसी से रिलेटेड उसका सेगमेंट रिलेटेड, जिसका नाम दिया हुआ है 8951 माइक्रो कंट्रोलर। तो इसने यहाँ पे दिया हुआ है द 89C51 इज कंपेटेबल विथ MCS51 फैमिली। तो ये जो टाइप का माइक्रो कंट्रोलर है ये किसके साथ कंपेटेबल है, अपने माइक्रो कंट्रोलर कौन सी फैमिली, 51 फैमिली, जो 8051 की फैमिली है। MCS मतलब अपना 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो ये जो 89C51 है, 89 जो लिया हुआ है, इज कंपेटिबल विद 8051 फैमिली। ये कंपेटिबल है, उसके साथ में बराबर बैठता है, कंपेटिबल है 8051 फैमिली के बराबर में। अब इसमें क्या क्या होता है वो देखो, आप लोग को ध्यान से देखो क्या क्या चीज़ है। इसमें भी 128 बाइट्स ऑफ ऑन चिप डेटा मेमोरी है, जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में है वही सेम चीज़ इधर पे भी है। इस पर्टिकुलर 89C51 में भी कितनी बाइट ऑफ मेमोरी है, रैम मेमोरी, जो डेटा मेमोरी जिसको बोलते हैं। तो रैम मेमोरी 128 बाइट ऑन चिप रैम 8051 में होता है, तो 89C51 में भी 128 बाइट्स ऑफ ऑन चिप रैम मेमोरी है, जिसको डेटा मेमोरी भी बोलते हैं। एक चीज़ का यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे क्या बोला है, 4 किलो बाइट्स ऑफ फ्लैश मेमोरी। यहाँ पे ये चीज़ का डिफरेंस आया है 8951 में, और आपके 8051 में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ये मेमोरी का डिफरेंस आ गया। 8051 में आपका नॉर्मल सिर्फ रॉम मेमोरी यूज होता है, हम लोग ने वहाँ पे क्या पढ़े थे, ऑन चिप 4 किलो बाइट ऑफ रॉम मेमोरी। अब यहाँ पे 4 किलो बाइट ऑफ रॉम की जगह पे फ्लैश मेमोरी यूज हुआ है। दर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्लैश मेमोरी एंड रॉम मेमोरी। रॉम मेमोरी आपका नॉर्मल रीड ओनली मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी में क्या होता है, डेटा एक साथ ही क्या होता है, रिटर्न भी होता है और इरेज भी होता है। अगर आप मेमोरी के बारे में डिटेल्स में पढ़े होंगे तो आपको फ्लैश मेमोरी के बारे में मालूम होगा। तो यहाँ पे मेमोरी का डिफरेंस है, यहाँ पे रोम के बदले में यहाँ पे कौन सी मेमोरी यूज होती है, 4 किलो बाइट्स ऑफ फ्लैश मेमोरी। इट इज़ अ टाइप ऑफ रोम ओनली, बट रोम का ये कौन सा मेमोरी यूज हो रहा है, कौन सा टाइप का रोम मेमोरी यूज हो रहा है, तो फ्लैश मेमोरी यूज हो रहा है। बाकी इसके अलावा बाकी सारे फीचर्स सेम है। इधर पे भी 216 बिट के टाइमर्स है, 8051 में भी 216 बिट के टाइमर्स होते हैं। यहाँ पे भी 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में भी 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, हर पोर्ट्स 8-8 बिट का होता है। 5 वेक्टर इंटरप्ट्स, 8051 में भी 5 इंटरप्ट्स है, यहाँ पे भी 5 वेक्टर इंटरप्ट्स है, ऑन चिप ऑसिलेटर्स एंड सीरियल पोर्ट। तो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो एज सेम एज योर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो जैसा 8051 माइक्रो कंट्रोलर में है वैसे ही सेम यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है। ओके, सिर्फ डिफरेंस का हुआ है 89C51 में। 89C51 में डिफरेंस आपका सिर्फ रॉम मेमोरी का हुआ है, वहाँ पे ऑन चिप 4 किलोबाइट ऑफ रॉम होता है, यहाँ पे ऑन चिप 4 किलोबाइट ऑफ फ्लैश मेमोरी है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन 8051 एंड 8951। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको बीच में नंबर लिख रहा है 89C51। व्हाट डज दिस सी इंडिकेट, ये सी क्या इंडिकेट करता है, दिस सी इज इंडिकेट इट इज ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ विच वाई सी, कौन से चीज़ से मैन्युफैक्चर की हुई है। तो ये आपको सीमॉस कंपोनेंट से मैन्युफैक्चर की हुई है। तो ये सीमॉस का जो वो सी आपको इधर पे नज़र आता है। तो अलग अलग आईसी जो अलग अलग कंपोनेंट्स को भी यूज़ करके मैन्युफैक्चर होती है। तो फॉर दिस आईसी द कंपोनेंट विच इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर इज एनमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट, सीमॉस। तो सीमॉस यूज़ करके आप इसको बनाते हो इधर पे, तो डेट्स वाई इसका नाम दिया हुआ है 89C51। और भी दूसरी आती है 89S51 करके भी आता है, जिसमें बीच में एस लिखा हुआ है। तो सबका मीनिंग अलग अलग होता है, वो मेमोरी का डिफरेंस होता है। वेयर एस में आपको उधर पे भी डिफरेंस नज़र आएगा कि वो कौन सी टाइप की मेमोरी यूज़ होती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर करना था, अंडरस्टैंड करना था 8951 से रिलेटेड। नाउ कमिंग टू अब इसके बाद का जो अपग्रेडेड वर्जन है, अभी हम लोग ने 8951 देखे, अब इसके बाद जो अपग्रेडेड वर्जन है वो 8952 है। सो 8952 में क्या डिफरेंस पाओगे आप लोग,
यानी 8951 के बाद 8952 बनाई गई है, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ अपग्रेडेशन होगा, अपग्रेडेड करके दिया होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट इज़ लो पावर हाई परफॉर्मेंस CMOS 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। तो लो पावर हाई परफॉर्मेंस CMOS, मैं जैसा आपको बताया था, वो जो C लिखा हुआ है, C स्टैंड फॉर किससे बनाया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट से बनाया हुआ है। सो इट इज़ लो पावर हाई परफॉर्मेंस CMOS 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। सब 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर ही है, सबका डेटा बस साइज 8 बिट का ही होता है। अब डिफरेंस देखो, आपको काय का डिफरेंस दिख रहा है, 8 KB ऑफ ISP फ्लैश मेमोरी, वहाँ पे आपके पास ऑन चिप रोम मेमोरी कितना था, 4 KB था। जब 8952 आएगा, जब भी 52 वाली सीरीज रहेगी, तो वहाँ पे सारी चीज़ डबल आपको दिखेगी। तो यहाँ पे रोम मेमोरी 4 KB के बदले में कितना है, 8 KB। तो 8 KB ऑफ फ्लैश मेमोरी, बाकी मेमोरी इसमें भी फ्लैश मेमोरी, क्योंकि ये 89 की सीरीज है। तो जब भी 89 की सीरीज रहेगी, वहाँ पे आपको मेमोरी फ्लैश मेमोरी नजर आएगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल रोम मेमोरी। 89 की सीरीज में जितनी भी 89 वाली सीरीज है, उसमें मेमोरी जो यूज़ होती है वो फ्लैश मेमोरी यूज़ होती है। तो 8951 में 4 KB का था, 8952 में कितना है, 8 KB का है। और रैम ऑन चिप रैम यहाँ पे कितना है, ऑन चिप रैम यहाँ पे 256 बाइट्स है, जबकि हम लोग ने 8951 में कितना देखे थे, 128 बाइट्स। नॉर्मल 8051 माइक्रो कंट्रोलर में भी 128 बाइट्स रहता है, यहाँ पे कितना उसका डबल, एवरीथिंग यू आर एबल टू सी डबल, मेमोरी में डबल हो गया यहाँ पे। तो 256 बाइट्स ऑफ ऑन चिप रैम है। फिर क्या दिया हुआ है, द डिवाइस uses microchip high density non volatile memory technology and is compatible with 80C51। तो ये जो कंपेटिबल है, किसके साथ कंपेटिबल है, 8051 के साथ में कंपेटिबल है। और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये डिवाइस क्या यूज़ करता है, माइक्रोचिप ऑफ हाई डेंसिटी नॉन वोलेटाइल मेमोरी टेक्नोलॉजी। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है, जो आपको पता है, जिसका डेटा लॉस नहीं होगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी टेक्नोलॉजी सब यूज़ करता है एंड कंपेटिबल विद 80C51। On chip flash allow the program memory to be reprogrammed in system or by a conventional non volatile memory programmer। ये जो आपको ऑन चिप फ्लैश जो दिख रहा है, ये जो हम लोग बोलते हैं कि इसमें ऑन चिप फ्लैश मेमोरी 8 KB का है, तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये ऑन चिप फ्लैश क्या करता है, ये अलाउ प्रोग्राम मेमोरी टू बी रीप्रोग्राम इन सिस्टम। तो ये आप इसमें रीप्रोग्राम कर सकते हो, आप प्रोग्रामर के थ्रू क्या कर सकते हो, रीप्रोग्राम कर सकते हो। ये 8 KB ऑफ फ्लैश मेमोरी में आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामर, यहाँ पे दिया हुआ है वो कौन सा प्रोग्रामर यूज़ करके। तो ये ऑन चिप फ्लैश जो है ना, फ्लैश क्या करता है, ये अलाउ करता है प्रोग्राम मेमोरी को टू बी रीप्रोग्राम, प्रोग्राम मेमोरी टू बी रीप्रोग्राम इन सिस्टम और बाय कन्वेंशनल नॉन वोलेटाइल मेमोरी प्रोग्रामर। आप एक नॉर्मल कोई भी प्रोग्रामर यूज़ करके आप इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस आईसी को प्रोग्राम कर सकते हो। तो प्रोग्राम हो सकता है, वापस से आप इसमें रिप्रोग्राम कर सकते हो। ये फैसिलिटी दी हुई है, ये टाइप का जो मेमोरी यूज़ होता है वो हिसाब से इधर पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। द पावरफुल माइक्रो कंट्रोलर इज सुटेबल फॉर मैनी एम्बेडेड कंट्रोल एप्लीकेशन। तो ऐसे चीज़ सब दिया हुआ रहेगा, फीचर्स दिया हुआ रहेगा, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, तो अगर ये सब इस तरीके के अच्छे से फीचर्स दिए हुए रहेंगे, तो ये सारे ऐसे जो पावरफुल माइक्रो कंट्रोलर है, इसको हम लोग अलग अलग डिफरेंट एम्बेडेड कंट्रोल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, विच कैन बी सुटेबल फॉर मैनी एम्बेडेड एप्लीकेशन। तो एक ही चीज़ का ध्यान में रखना है, जब 51 की सीरीज़ आती है तो उसमें सारे जो नॉर्मल हम लोग ने फीचर्स देखे हैं वैसा रहता है, लेकिन जब 52 की सीरीज़ आती है तो उसमें मेमोरी में डबल हो जाता है। 4 KB का 8 KB नज़र आएगा और 128 बाइट का 256 नज़र आएगा। और टाइमर्स की जो बात करते चलूँ, तो 2 टाइमर्स थे वहाँ पे, तो यहाँ पे 3 टाइमर्स मिलेंगे आपको, 3 टाइमर्स मिलेंगे। वेक्टर 5 है वहाँ पे, तो यहाँ पे 6 वेक्टर मिलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, हम लोग कंपेरिजन में देखेंगे तो आपको मैं बताऊँगा। तो सारी चीज़ डबल हो जाती है, बढ़ जाती है इसमें। 3 टाइमर्स भी आ जाते हैं, 3 16 बिट के टाइमर्स हो जाते हैं। और वेक्टर इंटरप्ट्स जो 5 थे वहाँ पे वो 6 दिखेंगे आपको, इधर पे 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट कमिंग टू 8031 माइक्रो कंट्रोलर, जो 8051 से पहले वाला है। ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर से पहले वाला वर्जन जो है वो 8031 माइक्रो कंट्रोलर है। तो ये क्या है, द 8031 इज द मेंबर ऑफ MCS51। ये भी MCS51 है। MCS किसको बोलते हैं, अपना माइक्रो कंट्रोलर 51, 8051 को MCS51 बोलते हैं, माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर सेगमेंट 51 फैमिली। तो माइक्रो कंट्रोलर 51 की फैमिली का रिलेटेड ये 8031 भी है। इसका भी जो कहा जाता है, इसको भी क्या कहते हैं, 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। देख लो, आप लोग जान लो, जितने भी माइक्रो कंट्रोलर आप पढ़ रहे हो सब 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर ही है। खाली फ़र्क टाइम है
किसी का मेमोरी अलग है, किसी का ये अलग है, कोई अलग टाइप के मेमोरी से बना है, कोई अलग टाइप का मेमोरी यूज होता है, ये सारी डिफरेंस है इसमें। तो इट इज़ ऑल्सो ऑफ 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, डेटा हैंडलिंग करने की कैपेसिटी 8 बिट की है। इट हैज़ द सेम इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स एज ऑन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो जैसा 8051 माइक्रो कंट्रोलर में इंटीग्रेटेड सारी चीज़ें है, वैसी 8031 में भी मिलेगा। क्या क्या? 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है, 2 16 बिट टाइमर्स है, ऑन चिप ऑसिलेटर है एंड सीरियल पोर्ट है। तो ये चीज़ जो 8051 में है वो सेम चीज़ 8031 में भी है। अब फ़र्क क्या रहेगा वो आगे चल के आपको मालूम पड़ेगा। द माइक्रो कंट्रोलर्स हैव 128 बाइट्स ऑफ इंटरनल रैम। इसमें भी 128 बाइट ऑफ इंटरनल रैम है एंड इन एडिशन टू दैट कैन यूटिलाइज अप टू 64 किलोबाइट ऑफ एक्सटर्नल डेटा मेमोरी। और आप ये चीज़ को आगे कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हो? 64 किलोबाइट ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी तक भी ले सकते हो। इंटरनल 128 बाइट रैम है, लेकिन आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो कहाँ तक बढ़ा सकते हो? 64 किलोबाइट, जैसा कि जो चीज़ हमने 8051 माइक्रो कंट्रोलर में भी देखे थे। अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ करना चाहते हो तो कहाँ तक यूज़ कर सकते हो? 64 किलोबाइट तक यूज़ कर सकते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। द माइक्रो कंट्रोलर डू नॉट हैव ऑन चिप रोम एंड मस्ट यूज एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी। ये एक लास्ट का पॉइंट 8031 माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। इट्स 8031 माइक्रो कंट्रोलर में अब क्या डिफरेंस है 8051 और 8031 में? तो 8031 में दिस माइक्रो कंट्रोलर डू नॉट हैव ऑन चिप रोम। तो ये माइक्रो कंट्रोलर में ऑन चिप रोम होता ही नहीं है, देता ही नहीं है। आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? सीधा एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी यूज़ करना पड़ेगा। आपको सीधा एक्सटर्नल 64 किलोबाइट प्रोग्राम मेमोरी रोम मेमोरी यूज़ करना है ये टाइप के माइक्रो कंट्रोलर में। जबकि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में ऑन चिप रोम कितने का होता है? 4 किलोबाइट का। तो 8031 माइक्रो कंट्रोलर और 8051 में सिर्फ डिफरेंस ये है कि 8031 डज नॉट प्रोवाइड ऑन चिप रोम मेमोरी। पहले से ऑन चिप रोम मेमोरी नहीं प्रोवाइड करता है, आपको डायरेक्टली एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी ही यूज़ करना है 8031 के केस में। जबकि 8051 में आपके पास 4 किलोबाइट तक का रॉ मेमोरी ऑन चिप दिया जाता है, मैन्युफैक्चर बना के देता है, प्रोवाइड करता है पहले से। और ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन 8031 एंड 8051। बाकी सारी चीज़ आपको सेम नजर आएगी, सारी चीज़ सेम है। नाउ द टाइम इज टू अटेम्प्ट MCQ सेट 1। तो नाउ इट्स अ टाइम टू अटेम्प्ट MCQ सेट 1। लेट अस चेक हम लोग को कितना अंडरस्टैंड हुआ, कितना मालूम पड़ा MCQ सेट 1 अटेम्प्ट करते हैं। So the first question, 8951 microcontroller has dash timers. तो 89 कितने टाइमर्स है? टाइमर्स which is the answer? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, 2। तो 8951 माइक्रो कंट्रोलर में भी कितने टाइमर्स है? 2 टाइमर्स है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। वेरी गुड। तो 2 टाइमर्स है। फिर आगे बढ़ते हैं। 8031 हैज रैम ऑफ डैश। तो 8031 माइक्रो कंट्रोलर में रैम कितने का है? हैज रैम ऑफ डैश 128। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, 128 बाइट्स। ओके। द डैश इंटेल माइक्रो कंट्रोलर इज नॉट हैविंग रोम। कौन सा इंटेल माइक्रो कंट्रोलर है जिसको रोम नहीं होता है? 8031 8031। वेरी गुड। यानी ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग प्रॉपरली एंड अटेंडिंग प्रॉपरली। तो ये सारी चीज़ आप अच्छे से अगर देख रहे हो, समझ रहे हो, देन डेफिनेटली यू आर एबल टू गिव द आंसर प्रॉपरली। तो फर्स्ट का आंसर बी, 2 टाइमर्स होता है 8951 में। टाइमर्स 3 टाइमर किस में हो जाएगा? जब 52 आ जाएगा। अगर यही चीज़ 8952 बोलता तो वहाँ पे हम लोग 3 टाइमर्स बोलते थे। तो 52 की सीरीज में 3 टाइमर्स होते हैं, 51 तक का 2 ही टाइमर है। 8031 में रैम की बात की है तो रैम तो उसमें 128 बाइट्स होता है। अगर रोम पूछता तो रोम नहीं होता है। तो 8031 में 128 बाइट, अगर यही 8052 करता तो 8052 में डबल होता, 256 बाइट होता। यस। और इंटरनल यहाँ पे पूछा कि कौन सा माइक्रो कंट्रोलर जिसको रोम होता ही नहीं है, तो जस्ट अभी पढ़ रहे थे 8031 जो ऐसा माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें रोम मेमोरी होता नहीं है, पहले से दे देता है। ऑल ऑफ यू वेरी गुड, very good, very well attempted the MCQ set 1.
नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, सेकेंड इज 8751। अब जो सीरीज है वो 8751 की है। तो 807 की सीरीज में और 895 की सीरीज में क्या फ़र्क होता है? 87 और 89 में फ़र्क सिर्फ उनकी मेमोरी से रिलेटेड है। 89 की सीरीज में जो मेमोरी यूज होती है वो होती है फ्लैश मेमोरी, और 87 में जो मेमोरी यूज होती है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप की मेमोरी यूज होती है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें आप प्रोग्राम को इरेज कर सकते हो फिर प्रोग्राम कर सकते हो। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इसी मेमोरी का फ़र्क है, इसलिए सब वर्जन जो है ना अलग अलग नाम के आते हैं। 8951 लिखा रहता है, 8751 लिखा रहता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इट कंसिस्ट ऑफ मेमोरी एंड इंटरप्ट्स टाइमर सेम एज इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर, बट इट हैज सिर्फ एक ही चीज़ है यहाँ पे क्या दे दिया है, ई यू ई प्रोम। व्हाट डू यू मीन बाय यूवी, सॉरी यूवी ई प्रोम? तो ये सारी चीज़ सेम करता है, मेमोरी सेम होती है, इंटरप्ट भी होता है, टाइमर भी होता है, सब कुछ सेम होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के जैसा होता है। लेकिन जब रॉम मेमोरी की बात होती है तो वहाँ पे 4 किलोबाइट रॉम मेमोरी है, तो यहाँ पे मेमोरी में डिफरेंस है। ये जो मेमोरी यूज करता है वो कौन सी मेमोरी यूज करता है? यू सॉरी यूवी। व्हाट डू यू मीन बाय यूवी? कैन एनीबॉडी टेल मी फुल फॉर्म ऑफ यूवी? यूवी, Ultraviolet. Ultraviolet. वेरी गुड, अल्ट्रा वायलेट। एंड दिस ई स्टैंड फॉर? Erasable ई, programmer read only memory. very good, very good. So erasable programmable read only memory. So the memory which is can be erasable and programmable. So UV stand for ultraviolet. अब इसको जो इरेज करने का जो तरीका है ना, जो प्रोग्राम जो आपने माइक्रो कंट्रोलर आईसी में रखे दिए, तो उसको आप इरेज किस तरीके से करोगे? सो यू आर गोइंग टू इरेज दैट कंटेंट विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस। तो उसके लिए अल्ट्रावायलेट रेस लगता है जो आपके प्रोग्राम को इरेज करता है, फिर आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो वो हिसाब से इसमें चेंजेस आएंगे आपको। तो यूजिंग 8751 चिप फॉर डेवलपमेंट रिक्वायर्स एक्सेस टू अ प्रॉम बर्नर। तो इसके लिए प्रॉम बर्नर लगेगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पे आप प्रोग्राम डालोगे। एज वेल एस, और उसके साथ क्या लगेगा? एज वेल एस अ यूवी ई प्रोम इरेजर। समझे? तो अल्ट्रा वॉलेट इरेजर लगेगा, क्योंकि ये जो है मेमोरी कौन सी है? अल्ट्रा वॉलेट इरेजेबल है। तो आपको यूवी ई प्रोम इरेजर लगेगा जो प्रोग्राम को इरेज करेगा। इरेज द कंटेंट्स ऑफ यूवी ई प्रोम इनसाइड द 8751 चिप बिफोर यू कैन प्रोग्राम इट अगेन। तो जब आपको दोबारा उसको प्रोग्राम करना है तो आपको वो हिसाब से यूवी ई प्रोम इरेजर भी लगेगा। तो यूवी ई प्रोम इरेजर के थ्रू आप उस चिप का जो प्रोग्राम का जो कंटेंट है वो इरेज कर पाओगे, और फिर प्रॉम बर्नर के थ्रू आप दोबारा प्रोग्राम कर पाओगे। द ऑन चिप प्रॉम फॉर द 8751 इज UV EEPROM. It takes around 20 minutes to erase the 8751 before it can be programmed again. तो ये कितना टाइम लेता है अपने कंटेंट को इरेज करने के लिए? जो प्रोग्राम इसमें था उस प्रोग्राम को इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए इसमें टाइम कितना लगता है? 20 मिनट्स तक का टाइम लगता है। सो 20 मिनट तक का टाइम लेगा आपके पुराने कंटेंट को इरेज करने के लिए, बिफोर यू कैन प्रोग्राम इट अगेन। तो दोबारा प्रोग्राम करने के पहले आपको 20 मिनट तक वेट करना पड़ेगा, और ये 20 मिनट वेट करके आप उस पुराने कंटेंट को वेट कर पाओगे। देन विद द हेल्प ऑफ बर्नर आप उसके अंदर वापस से प्रोग्राम इंसर्ट कर पाओगे। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर की सीरीज वगैरह प्रोग्रामेबल है, उसको प्रोग्राम किया जाता है। तो प्रोग्राम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग बर्नर भी यूज होते हैं मेमोरी के हिसाब से। जैसा आपका मेमोरी है वो हिसाब से आपको उधर पे बर्नर लगता है जो प्रोग्राम को इंसर्ट करता है उस मेमोरी में। तो यहाँ पे 8751 की सीरीज में, जो 87 की जो सीरीज है वहाँ पे जो मेमोरी यूज होती है वो कौन से टाइप की यूज होती है? यूवी प्रोम। तो इसके लिए आपको इरेज करने के लिए वो टाइप का आपको इरेजेबल भी लगेगा। तो यूवी प्रोम इरेजर लगेगा जो इरेज करेगा आपके कंटेंट को, और वो हिसाब से बर्नर भी लगेगा जो दोबारा प्रोग्राम को इंसर्ट करेगा। और ये काम होने के लिए, पुराना डेटा होने के लिए कितना मिनिमम टाइम लगता है? जो बताया 20 मिनट्स का टाइम लगता है। तो ये देखो पूरा डिस्क्रिप्शन है जो आप देख रहे थे अभी तक। पूरा डिस्क्रिप्शन क्या है, रोम टाइप में क्या क्या रोम टाइप है। तो 8031 में कोई रोम नहीं होता है, नो रोम, इट इज़ रोम लेस। 80XX की सीरीज़ जो हम लोग नॉर्मल पढ़ रहे हैं, 8051 8052, तो उसमें नॉर्मल रोम मेमोरी यूज होता है, उसमें कोई डिफरेंट टाइप का एडिशनल टाइप का रोम नहीं होता है। तो 80 की सीरीज़ जो है 8051 8052, तो उसमें नॉर्मल रोम होता है। सिर्फ 8031 जो है जो रोमलेस होता है। 8031 में तो रोम ही नहीं होता है। बाकी इसके आगे 8051 8052 जितने वर्जन है उसमें रोम नॉर्मल रोम होता है।
फिर इसके बाद 8-7 की सीरीज़ में क्या होता है, 8-7 की सीरीज़ में इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि अभी अल्ट्रा वॉयलेट वाला देख रहे थे हम लोग। तो 8-7 की सीरीज़ में जो रॉम मेमोरी यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, EEPROM यूज़ होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो एक इरेजेबल कौन सा वाला टाइप का देखे, अल्ट्रा वॉयलेट वाला देखे। और 8-9 की सीरीज़ में जो रॉम यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, फ्लैश डबल EEPROM। तो फ्लैश टाइप का यूज होता है, फ्लैश डबल ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो डबल ई प्रोम इलेक्ट्रिकली, जिसको आप इलेक्ट्रिकली वोल्टेज के थ्रू इरेज कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो मेमोरी का डिफरेंस होता है 8-9 की सीरीज में, 8-7 की सीरीज में। अब 8-9 की डिफरेंट डिफरेंट सीरीज कौन सी है, 8951, 8952, 8953, 8955, 898252, 891051, 892051। तो ये सब अलग अलग वर्जन हैं ये 8-9 सीरीज के माइक्रो कंट्रोलर के। सम चेंजेस होंगे, किसी में मेमोरी अलग रहेगा, किसी में टाइमर अलग रहेगा, किसी में कुछ रहेगा। ये सब अलग अलग वर्जन है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो आप लोग देखते हो, हम लोग जो अपना यूज़ करते हैं अपने कील सॉफ्टवेयर में, जो मैं माइक्रो कंट्रोलर आपको सिलेक्ट कराता हूँ, तो इसकी जो आईसी अवेलेबल होती है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है AT89C51, सो AT89C51, AT89LV51, AT89S51। तो ये सब अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर आईसीज हैं। तो अब ये क्या फ़र्क है इन सब में, वो नाम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो कैपिटल जो 80 स्टार्टिंग में यूज होता है, इट स्टैंड फॉर एटमेल मैन्युफैक्चरर। ये मैन्युफैक्चरर का नाम है, जो आईसी को बनाया है मैन्युफैक्चरर वो किसने बनाया, एटमेल ने। तो दिस स्टैंड फॉर एटमेल मैन्युफैक्चरर नेम। और बाकी 89C जो था, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, सीमॉस टेक्नोलॉजी से बना हुआ रहता है वो चिप। तो दैट्स वाई दिस सी स्टैंड फॉर सीमॉस टेक्नोलॉजी वाला आईसी है। तो अब ये पूरा क्लियर हो गया आपको। 8089C51 का पूरा नाम में क्या क्या है डिस्क्रिप्शन। दिस कैपिटल 80 स्टैंड फॉर एटमेल एंड दिस कैपिटल सी स्टैंड फॉर सीमॉस टेक्नोलॉजी से बना हुआ वो आईसी है। दूसरा जो टाइप का आईसी आपको दिख रहा है 8089LV51, तो दिस एलवी स्टैंड फॉर लो पावर, यानी इसमें ऑलरेडी पावर सेविंग का ध्यान रखते हुए बनाई गई आईसी है। ऑलरेडी इसमें पावर का रिक्वायरमेंट कम लगता है। एलवी, एलवी स्टैंड फॉर लो पावर। तो लो पावर कितना तक यूज होता है, 3 वोल्ट यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। नॉर्मली आप 8051 की आईसी यूज करोगे उसमें 5 वोल्ट लगता है, कोई में 12 वोल्ट लगता है, नॉर्मल तो 5 वोल्ट लगता ही लगता है। लेकिन ये जो टाइप की आईसी है 8089LV51, जिसका फुल फॉर्म एलवी स्टैंड फॉर लो पावर, लो पावर वोल्टेज। तो लो पावर वोल्टेज वो कितना होता है उसमें, 3 वोल्ट का होता है। तो 3 वोल्ट आप लो पावर वोल्टेज दोगे, पावर सेविंग होता है इसमें, इसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होती है। 89S51S में आपका दिस एस स्टैंड फॉर फ्लैश टाइप मेमोरी, जो फ्लैश टाइप का मेमोरी यूज होता है जिसमें उसके लिए ये उस टेक्नोलॉजी से बना हुआ होता है, उसका डिस्क्रिप्शन किया हुआ है 8089S51। ये सब ऐसा अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। नाउ कमिंग टू दिस दिस इज द ओनली मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर। तो ये जो पूरा समराइज चीज़ मैं बता दूँ, तो आज का पूरा जो लेक्चर लेके जाने का जो मकसद ही था, पूरा कंपैरिजन बताना है डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर 8051 की जितनी भी फैमिली मेंबर्स है टाइप के माइक्रो कंट्रोलर है, उनके बीच में कंपैरिजन करना, और यही इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। और ये आपको क्वेश्चन कैसा आता है वो हम लोग एमसीक्यू के बेसिस पे देख रहे हैं। तो आपको सिर्फ ये टेबल, ये चार्ट आप पूरा ध्यान में रखना है। ये पूरा अभी लेक्चर का पूरा समराइज चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइसेस के नाम दिया हुआ है और क्या चीज़ कितनी होती है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। तो सबसे पहले ऑन चिप डेटा मेमोरी यानी रैम, ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी यानी रोम, टाइमर काउंटर किट 16 बिट का कितना होता है, नंबर ऑफ वेक्टर इंटरप्ट्स कितना है, और फुल डुप्लेक्स इनपुट आउटपुट यानी इनपुट आउटपुट सीरियल कम्युनिकेशन के पोर्ट्स कितने हैं, सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए पोर्ट्स कितने हैं। तो इन बेसिस पे आपको ये कंपैरिजन करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात चल रही है 8089C51। तो 8089C51 और 8089C52, ये दोनों में क्या डिफरेंस होगा। 8089C51, 8089C52, एक चीज़ ये क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे जो मेमोरी यूज़ हो रही है 89 की सीरीज़ में, तो 8-9 की सीरीज में जो मेमोरी यूज होती है वो कौन सी मेमोरी यूज होती है, फ्लैश मेमोरी। ऑलवेज रिमेंबर 8-9 वाली सीरीज कौन सा मेमोरी यूज करेगा, फ्लैश मेमोरी। सो 4 किलोबाइट 5.1 में होता है और 8 किलोबाइट डबल किस में होता है, 5.2 में होता है। सो 8089C51, 8089C52 में मेमोरी सेम टाइप की होगी, फ्लैश मेमोरी। खाली फर्क नंबर की वजह से, वर्जन की वजह से मेमोरी बढ़ती है। 8951 में 4 किलोबाइट की फ्लैश मेमोरी होती है, 8952 में 8 किलोबाइट की होती है। बाकी आप देख लो इधर पे रैम कितना है यहाँ पे 51 में 128 बाइट, उसका डबल आपको नज़र कितना आएगा 52 में, कितना 256 बाइट। तो 128 बाइट इंटरनल रैम मेमोरी इन 8951 एंड 256 बाइट इंटरनल रैम इन 89C52। बाकी टाइमर्स कितना होगा, इसमें 2 टाइमर है 51 में, तो इसमें टाइमर कितना है, 3 टाइमर्स है।
नंबर ऑफ वेक्टर इंटरप्ट्स यहाँ पे कितना है फाई वन में 5 है, तो फाई टू में कितना है 6 है। और फुल डुप्लेक्स इनपुट आउटपुट पोर्ट सीरियल कम्युनिकेशन का पोर्ट सब में एक ही होता है, उसमें डबल करने की जरूरत नहीं है, ओनली वन इज गुड, तो वन पोर्ट है। तो ये चीज़ हम लोग ने पहले किसकी देखे 89C51 और 89C52 का देखे। अब आज वो लाइन से इनका देखते हैं 8031, 8751, 8051, 8052। तो अगर आप ध्यान से देखो जितनी 51 वाली सीरीज है 51 वाली सीरीज, तो 51 वाली सीरीज में जो मेमोरी वगैरह वो सेम ही अमाउंट की है, बस फर्क क्या में है, किसी में फ्लैश है तो किसी में नॉर्मल सा रोम है, किसी में इरेजेबल है, तो ये चीज़ आपको नज़र आएगा। तो हम लोग ने जो 8051 पढ़े, तो 8051 में जो रोम यूज़ होता है वो नॉर्मल 4 किलोबाइट का रोम यूज़ होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। रैम कितना होता है इंटरनल 128 बाइट, 4 किलोबाइट ऑफ रोम। तो 51 वाली सीरीज में मेमोरी वगैरह सब उतनी रहेगी, कोई भी चीज़ में डिफरेंस नहीं मिलेगा। खाली डिफरेंस क्या में मिलेगा, अगर 8751 की बात करोगे तो 87 वाली सीरीज में जो मेमोरी यूज होती है वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यूज होती है। 8051 में नॉर्मल रोम होता है, 87 वाले में 7 वाली सीरीज में इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और 8031 में तो रोम रहता ही नहीं है, ये हम लोग ने देख चुके हैं। 8031 में इट इज रोमलेस, ऑन चिप रोम होता ही नहीं है, तो रोम इज नन। बाकी सारे कंटेंट आपको सेम मिलेंगे। इंटरनल रैम कितना रहेगा, जब भी 31 वाला रहेगा 315151, तो उसमें 128 बाइट्स का इंटरनल रैम रहेगा। टाइमर्स भी कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। वेक्टर इंटरप्ट्स भी कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। और सीरियल कम्युनिकेशन का पोर्ट भी कितना रहेगा, एक ही रहेगा। तो 8051 और 8751 में काय का डिफरेंस है, 8051 और 8751 में रोम का डिफरेंस है। तो जो रोम यूज होता है वो ईप्रोम यूज होता है, और 89 में 9 वाले सीरीज में मेमोरी जो यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, फ्लैश। तो ये डिफरेंस आप लोग जान लो। 89 वाला सीरीज फ्लैश मेमोरी, 87 वाला सीरीज ईप्रोम मेमोरी, और 8051 नॉर्मल रोम मेमोरी, नॉर्मल रोम। अब आगे बढ़ते हैं 8052। तो 8052 में सारे कंटेंट डबल होते हैं। 128 बाइट का कितना हो जाता है, 256 बाइट रैम हो जाता है। 4 किलोबाइट का रोम का कितना हो जाता है, 8 किलोबाइट रोम हो जाता है। टाइमर 2 का कितना हो जाता है, 3। वेक्टर 5 का कितना हो जाता है, 6। और सीरियल कम्युनिकेशन का पोर्ट तो एक ही होता है। लास्ट अब आ जाओ किसमें, 8752 में। तो 8752 में भी इंटरनल रैम कितना रहेगा, 256, 51 का डबल 256। अब यहाँ पे जो रोम जो होगा वो खाली कौन सा यूज होगा, ई प्रोम यूज होगा। तो 7 वाला सीरीज है 87, तो कौन सा मेमोरी, ई प्रोम। 89 वाला सीरीज है तो कौन सा मेमोरी, फ्लैश। और 80 वाला है तो नॉर्मल रोम। तो इस तरीके से खाली अंडरस्टैंड करने का आपको क्या डिफरेंस है। तो 80 वाले सीरीज में नॉर्मल रोम होता है, 87 वाले सीरीज में ई प्रोम होता है, और 89 वाले सीरीज में फ्लैश यूज होता है। बाकी 52 जब रहेगा 2 रहेगा तो डबल हो जाएगा कंटेंट, 128 का 256, 4 किलोबाइट का 8 किलोबाइट, टाइमर 2 का 3, वेक्टर का 5 का 6, और सीरियल कम्युनिकेशन का पोर्ट सब में एक ही होता है। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। नाउ इट्स अ टाइम टू अटेम्प्ट एमसीक्यू सेट 2। इफ यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली तो आप एमसीक्यू सेट 2 प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर पाओगे। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द 87 माइक्रो कंट्रोलर हैज डैश नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट लाइन्स। तो 8751 माइक्रो कंट्रोलर में नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट लाइन्स कितनी होती है, पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट्स में तो हम लोगों ने कहीं पे भी किसी में डिफरेंस नहीं देखे। 32, वेरी गुड। तो जैसा 51 माइक्रो कंट्रोलर में, वेरी गुड, 32 बराबर है, करेक्ट है। सो 32 इनपुट आउटपुट लाइन से जो 4 पोर्ट्स में डिवाइड होती है, हर पोर्ट्स 8 बिट का होता है, तो वो हिसाब से 32 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट लाइन्स होती है। तो 87 माइक्रो कंट्रोलर में भी कितने हैं आपके पास, वही उतने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट लाइन्स है, 32। नाउ सेकंड क्वेश्चन, identify the device of MCS 51 family that does not possess 2 16-bit timer counter। अब इनमें से आइडेंटिफाई करो कौन सा माइक्रो कंट्रोलर फैमिली है जो 2 16-बिट का टाइमर काउंटर पजेस नहीं करता है। तो कौन सा ऐसा माइक्रो कंट्रोलर है जो 2 16-बिट का टाइमर पजेस नहीं करता है, 8031, 8052, 8751, 8951। तो इन सारे माइक्रो कंट्रोलर में से ऐसा कौन सा टाइमर है, 8052 8052। रीजन कितना करता है वो 805 कितना पजेस करता है, 8052 कितना पजेस करता है, अगर 2 16-बिट का नहीं पजेस कर, हाँ तो कितना पजेस करता है, कितना फिर रहता है उसके अंदर, 3 टाइमर। वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर हुआ। तो 2 16-बिट का टाइमर काउंटर किसमें होता है, जितने भी 3-1 वाली फैमिली है। तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा लास्ट में जो 1 वाली फैमिली है, उन लास्ट में 1 वाले फैमिली में 2 होते हैं,
जो 5.2 वाला है वो उसमें 3 होते हैं। तो इसके लिए देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा, आपको घुमा के पूछा कि इन माइक्रो कंट्रोलर में से वो बताओ कि कौन सा माइक्रो कंट्रोलर 2 16 बिट का टाइमर काउंटर पजेस नहीं करता है। तो 2 16 बिट का टाइमर कौन पजेस नहीं करता है? सिर्फ 8052, जबकि वो कितना पजेस करता है? 3 करता है वो। बाकी सब जितने भी 1 वाले हैं वो 2 पजेस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डैश माइक्रो कंट्रोलर हैज 4 किलोबाइट फ्लैश मेमोरी एंड डैश माइक्रो कंट्रोलर हैज 8 किलोबाइट फ्लैश मेमोरी। तो इन ऑप्शन में से कौन से माइक्रो कंट्रोलर करेक्ट हैं जो 4 किलोबाइट और 8 किलोबाइट फ्लैश मेमोरी को कंटेन करते हैं? विच इज द ऑप्शन? 8951 ऑप्शन ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? ऑप्शन ए, वेरी गुड। तो ऑप्शन ए 8951 8952 मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। जितनी 89 वाली सीरीज है वो कौन सा मेमोरी को रखते हैं? फ्लैश को। और जो 87 वाली सीरीज है वो कौन सी मेमोरी को रखते हैं? ईप्रोम को। और जो 80 वाली सीरीज है वो नॉर्मल रोम को। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्लैश मेमोरी, 4 किलोबाइट फ्लैश मेमोरी, 8 किलोबाइट फ्लैश मेमोरी। तो 8951 में 4 किलोबाइट का फ्लैश मेमोरी होता है और 8952 में 8 किलोबाइट का फ्लैश मेमोरी होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं विच इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है आपका, हम लोग उसको करेक्ट करके देख लेते हैं। तो पहले वाले का आंसर में आपका 87 माइक्रो कंट्रोलर हैज डैश कितना है? 32, ऑप्शन सी करेक्ट है। सेकंड वाले में आइडेंटिफाई द डिवाइस, वो डिवाइस को आइडेंटिफाई करो जो 2 16 बिट का टाइमर पजेस नहीं करता है, तो ऑप्शन बी 8052। नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन द ऑप्शन इज गिवन टू यू, आंसर बी 8051 8951 विच इज रॉन्ग ऑप्शन। ये आपको आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, रॉन्गली मार्क किया हुआ है। एक आपको इधर पे अभी तक का एक आंसर आपको गलत मिला है। यह आंसर में आपका क्या है, जो करेक्ट आंसर हम लोग ने देखे, इट इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। जो आपको पहले से आंसर जो ऑप्शन बी दिया हुआ है वो ऑप्शन बी नहीं है, वो हम लोग ने अभी पढ़े, अभी अंडरस्टैंड किए कि 8951 और 8952 में फ्लैश मेमोरी यूज होता है। इसमें 4 किलोबाइट, इसमें 8 किलोबाइट। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ओनली। दिस ऑप्शन बी इज गिवन मिस्टेकनली। ये आपको ऑप्शन बी मिस्टेकनली दिया हुआ है। ओके, प्लीज करेक्ट कर लेना इसको। So summary, the various derivatives of 8051 are, तो different derivatives of 8051 microcontroller क्या क्या है? 8951, 8952, 8031, 8751, 8052। तो ये 5 टाइप के डेरिवेटिव्स हम लोग ने डिटेल में देखे विद कंपैरिजन ऑल्सो, सारे कंपैरिजन के साथ में। सो आई थिंक डेट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। फिर भी आप लोगों को कुछ अगर नहीं समझा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना, मैसेज करना। डेफिनेटली I will try my best to explain you once again. So once again, thank you very much all of you for joining, listening and understanding. Stay safe, stay at home. Thank you very much.